Hi friends, this is Sunil Amlani from BEI. As a part of our series Facts, Myths and Legends, we are going to discuss today one more topic in accounts, that is exception to the rule of posting. Yes, my dear friends, exception to the rule of posting. We'll discuss what are the exception or the rule of posting, but before that, let us discuss what are the rules for posting. वो समझने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा. We'll take one example of business transaction. Let us take an example. On 23rd of May 2019, we have sold some goods for rupees 10,000. Now, as this is a business transaction, we'll record in our book of journal entry, that is journal. The format of journal is date, particular, ledger folio, debit rupees and credit rupees. In that, we'll record our transaction, date 23rd of May 2019. In particular column, we record the transaction, cash account debit to sales, my journal entry. Ledger folio column, time being we do not record anything in that, and debit rupees 10,000, credit rupees 10,000, and we'll write a brief narration about the transaction. The process is known as journalizing. Now, after you have recorded that transaction in your book of journal, now the next thing is posting. Posting is a thing, but the process of recording this journal entry in your ledger. अब ledger में हमारे पास बहुत सारे accounts होते हैं, तो जो accounts हम लोग को चाहिए, जो हमारी journal entry में involved हैं, वो account हम लोग ढूंढेंगे पहले, and then we will post this entry there. मतलब कि हम ये record करेंगे ये entry वहां पे, उसको बोला जाता है posting. So here in this particular journal entry, two accounts are involved. One is cash account and one is sales account. So first of all, we'll find cash account. Say for example, cash account is at page number 7. What is the format of ledger? Date, particular, journal folio and rupees column, amount column, and same 4 columns will be repeated again. So it is divided into 2 part, debit part and credit part, total 8 columns. Cash account क्या किया था हमने? Debit किया था. What is the process? Date column, we record the date of transaction 23rd of May 2019. Amount क्या था? 10,000 rupees. So I record 10,000 rupees in amount column. Journal folio column, the page number of the journal where this particular entry is recorded. कोई एक number ले लेते हैं, let us say page number 18. But main thing, particular column. हमारा जो आज का वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. What is the process or what is the rule for posting? Posting का rule है कि whenever you are writing some amount in your account, debit side or credit side, it should be supported with particular column the reference of other account being debited or credited. हम उसका reference देते हैं जो account debit हुआ है या तो credit हुआ है. In this particular journal entry, which account is being credited? Sales. तो कैश लिंक्ड है किसके साथ? सेल्स के साथ. सो विल रिकॉर्ड टू सेल्स अकाउंट. टू लिखा जाता है, इट्स अ ट्रेडिशन, और ये क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. देन विल गो टू सेल्स अकाउंट. लेट्स से सेल्स अकाउंट वो है हमारा पेज नंबर 27 पे. हम जाएंगे, सेल्स अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था. तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 23rd of May, अमाउंट लिखेंगे 10,000. हमारा जर्नल फोलियो सेम टू सेम आएगा. एंड आपका अमाउंट पर्टिकुलर कॉलम में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. हम रेफरेंस दे दें. दिस इज नथिंग बट रूल ऑफ पोस्टिंग. अब इसके एक्सेप्शन क्या है? बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है. विल डिस्कस वन बाय वन. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ पोस्टिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्रीज? चलिए समझते हैं. ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है जो आपने प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट बनाई होती है, उसमें जो भी आपने बैलेंसेस लिखे हैं वो सारे बैलेंसेस करंट ईयर में आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं, उसको बोला जाता है ओपनिंग एंट्रीज. ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है? ओपनिंग एंट्रीज आपका असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. चलिए समझने के लिए we'll take one example of one business enterprise where for financial year 2017-2018 they have prepared a closing balance sheet. Let us take some random figures. Balance sheet as at 31st March 2018. Liabilities rupees, assets rupees.
कैपिटल, इट इज अज्यूम सम फिगर 60,000 रुपीज। कोई एक क्रेडिटर ले लेते हैं, लेट्स से ए एन कंपनी 10,000 रुपीज। देन asset side, we'll take few assets, let us take machinery 50,000 rupees। कोई एक डेटर का अकाउंट लेंगे हम, राज एंड सन्स रुपीज 8,000, कैश अकाउंट रुपीज 12,000। अगर हम टोटल करेंगे तो 60 प्लस 10 लायबिलिटी साइड आपका टोटल आ गया 70,000, और असेट साइड अगर हम जाएंगे तो 50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 दैट इज 70,000। अगर ये जो हम बैलेंस शीट बनाए हैं नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का सबसे पहला एंट्री जो होता है दैट इज योर ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री क्या होता है, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। तो अगर हम उसको यही एग्जांपल में फिट करें तो यहां पे होगा जर्नल 1 अप्रैल 2018, मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, राज एंड सन्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू ए एंड कंपनी 10,000 रुपीज टू कैपिटल 60,000 रुपीज, और नरेशन आ जाएगा, डेट ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2018 और लेजर फोलियो बाद में लिखते हैं हम। अब ये एंट्री को अगर हमको पोस्ट करना है तो विल गो टू आर लेजर। लेजर में सारे अकाउंट्स ढूंढेंगे हम, रिस्पेक्टिवली योर मशीन अकाउंट, राज एंड सन्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ए एंड कंपनी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब सब अकाउंट्स में डेट कौन सा आएगा, ऑब्वियसली 1 अप्रैल 18 जो डेबिट हुए हैं और जो क्रेडिट हुए हैं। अमाउंट अगर हम लिखें तो मशीन में आएगा 50,000, राज एंड सन्स में आएगा 8,000 और कैश में आएगा 12,000 रुपीज। ए एंड कंपनी में आएगा 10,000 जो कि क्रेडिट होगा और कैपिटल में होगा 60। बट द क्वेश्चन इज व्हाइल राइटिंग इन योर पर्टिकुलर कॉलम क्या लिखे, क्या मशीन अकाउंट में अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पोस्टिंग जो हमको बोला जाता है कि अदर अकाउंट बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड उसका रेफरेंस दिया जाना चाहिए। कैन आई गिव रेफरेंस ऑफ ए एंड कंपनी एंड कैपिटल? नो माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट, बिकॉज वहां पे हम लिखते हैं डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, वेदर इट इज मशीन अकाउंट और योर कैश अकाउंट और राज एंड सन्स अकाउंट, सब जगह पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, एंड जो क्रेडिट हुए हैं वहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। तो ये भी एक एक्सेप्शन ही है रूल ऑफ पोस्टिंग का कि जो भी हमने अकाउंट डेबिट किए हैं और जर्नल में जो सामने कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं उसका हम रेफरेंस नहीं देते हैं। सिमिलरली क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर व्हाट एवर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस उसमें हम एट द एंड ऑफ द ईयर सारे अकाउंट्स बंद करेंगे और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे डालेंगे। कुछ अकाउंट्स होंगे जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे और कुछ जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। तो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो अकाउंट जो बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। तो अगर हम डिस्कस करें मशीन में लेटेस्ट से कुछ डिप्रीशिएशन हुआ होगा, आपका कैश अकाउंट उसमें बहुत सारे सेल्स, कैश सेल्स हो चुके होंगे, डेटर से कुछ पैसा आया होगा, देन आपने बहुत सारे परचेजेस किए होंगे, कैश परचेजेस, पेमेंट किया होगा सप्लायर को या फिर एक्सपेंसेस पे किए हैं, उसके बाद कुछ आपका बैलेंस होगा। राज एंड सन्स में आपने बहुत सारा सेल्स किया हुआ है और कुछ कुछ कैश मिला है, पीरियडिकली आपको जो भी मिलता रहता है और कुछ बैलेंस आएगा। ए एंड कंपनी में भी आपने बहुत सारे परचेजेस किए होंगे क्योंकि वो हमारा सप्लायर है और बहुत सारे कैश हमने एवरी नाउ एंड देन पे किए होते हैं। आपका कैपिटल अकाउंट जो है उसमें भी बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि आपने पीरियडिक कुछ अमाउंट ड्रॉ किया है या फिर कुछ फ्रेश कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है या फिर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर हम ये सारा एंट्रीज लिखेंगे तो एट द एंड कुछ बैलेंसेस मिल जाएंगे। समझने के लिए लेट अस अज्यूम फ्यू बैलेंसेस। मशीन अकाउंट आप अज्यूम करेंगे 45,000 बैलेंस, देन आपका कैश अकाउंट बैलेंस अज्यूम कर लेते हैं हम 29,000, आपका डेटर का अकाउंट जो है राज एंड सन्स लेट अस अज्यूम 13,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस, कुछ भी हो सकता है, वी आर अज्यूमिंग सम रैंडम स्टफ। देन आपका ए एंड कंपनी जहां पे आप अज्यूम करेंगे क्लोजिंग बैलेंस 16,000 रुपीज एंड कैपिटल अकाउंट 71,000 रुपीज। अब ये आ तो गया, हमने जो लिखा मशीन अकाउंट या फिर आपका कैश अकाउंट राज एंड सन्स सब में वो क्रेडिट साइड बैलेंसेस आ रहे हैं और ये सब आपने लायबिलिटीज में डेबिट भी किया हुआ है 16,000 एंड योर 71,000, राइट। बट अब आगे क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
assets account. अगर वही रूल यहां पे हम अप्लाई करें फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, अगर हम वो एंट्री पास करते हैं तो एंट्री होगा आपका ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 16,000 रुपीज, देन कैपिटल अकाउंट डेबिट 71,000 रुपीज, टू मशीनरी अकाउंट कितना आएगा 45,000 रुपीज, टू राज एंड सन्स जो हमारा डेटर है, असेट है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कितने से 13,000 रुपीज से, एंड टू कैश, कैश कितना आएगा आपका 29,000 रुपीज। एक नरेशन आ जाएगा, ये डेट कौन सा होगा, ऑब्वियसली 31 मार्च 2019, ये सारे 31 मार्च 2019 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इसका पोस्ट करेंगे एंट्री हम, तो यहां पे तो हम हर जगह पे बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, या फिर टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड ऐसे लिखते हैं। अगेन माय डियर फ्रेंड, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि यहां पे हम दूसरा रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। So here the second exception to the rule of posting is special journal, your subsidiary book. क्यों बनाया जाता है subsidiary book? When in business enterprise your transactions are more, तो आपका जो जर्नल है वो वॉल्यूमलेस हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी बल्की एंड इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल इट। देन in order to overcome this difficulty we prepare a special journal, your subsidiary book. So to understand this exception to the rule of posting, let us take one example of a business enterprise who is more into purchase of goods on credit. So we'll prepare a purchase book for that. Purchase book, let us say April 2018 मंथ का हम एग्जांपल लेते हैं। Purchase book, डेट, इनवॉइस नंबर जो हमको सप्लायर से मिलता है, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। दिस इज द कॉमन फॉर्मेट, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हमको लिबर्टी दिया गया है। देन इन दैट केस लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 2-3 परचेजेस समझने के लिए। 10th April we have purchased goods from A and company 10,000 rupees. So here we will write 10th April, name of supplier A and company and 10,000 rupees. Invoice number कुछ भी हो सकता है। Then इसका डायरेक्टली हम लिखेंगे कहां पे, पोस्ट करेंगे आपके A and company के अकाउंट में, लेजर में, क्रेडिट साइड पे, सेम डेट बाय परचेज अकाउंट। लेट्स से 20 अप्रैल को हमने और एक परचेज किया था B and company से 20,000 रुपीज का। सो 20 अप्रैल, नेम ऑफ सप्लायर बी एंड कंपनी एंड 20,000 रुपीज, और वो जाएगा कहां पे आपके लेजर में। 20,000 रुपीज बी एंड कंपनी में क्रेडिट करेंगे बाय परचेज अकाउंट। 30 अप्रैल को हमने परचेज किया सी एंड कंपनी से 30,000 रुपीज का गुड्स। सो 30 अप्रैल सी एंड कंपनी 30,000 रुपीज, एंड वो एंट्री लिखेंगे हम लेजर में सी एंड कंपनी के अकाउंट में बाय परचेज अकाउंट। नाउ अ पीरियोडिक टोटल ऑफ दिस परचेज बुक that is 60,000 rupees, 10 plus 20 plus 30, 60,000 rupees I will transfer to purchase account. Which side? Debit side. So 30 April 2018 last date को हम लिखेंगे purchase account में to sundries as per purchase book rupees 60,000. अगर हम rule of posting वापस थोड़ा रिकलेक्ट करें, what is the rule of posting? जब जब आप अमाउंट कॉलम में कुछ लिखोगे, पर्टिकुलर कॉलम में आप जो भी अकाउंट कॉरस्पॉन्डिंगली डेबिट या क्रेडिट हुए उसका रेफरेंस देते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं टू सन्ड्रीज एस पर परचेज बुक। क्या परचेज बुक क्रेडिट हुआ है? नहीं, परचेज बुक इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल द परचेज ट्रांजैक्शन। क्या हमारे पास ऐसा कोई अकाउंट है टू सन्ड्रीज एस पर परचेज बुक? नहीं। तो दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द exception to the rule of posting. So the third exception to the rule of posting is a rectification of error under a situation where trial balance is not yet prepared. Now, rectification can be done under 3 different situations. Number 1, during the accounting year when you have not prepared your trial balance. Second situation is after preparing your trial balance but still you have not finalized your accounts. And third one, rectification of error after your final account when you find error in next accounting year. अब ये सब डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग. I will just discuss what is relevant to our topic. That is first situation when trial balance is not prepared. Trial balance जब नहीं बनता है तो there are 2 type of errors. Number 1, one-sided error. Number 2, two-sided error. Here in this particular thing we require one-sided error. क्या होता है one-sided error? जहां पे सिर्फ और सिर्फ
एक साइड पे इंपैक्ट आता है आपकी एरर्स का. सो विल टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. लेट अस से द प्रीवियस एक्सेप्शन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ परचेज बुक. वही सेम एग्जांपल का रेफरेंस हम यहां पे लेते हैं. वी assume that purchaser, I mean the enterprise has made 3 purchases, 10,000, 20,000 and 30,000. Remember, total 60,000. अब मान लो कि आपने ये टोटल करने में मिस्टेक कर दी. टोटलिंग मिस्टेक इज ऑल्सो एन एरर. तो मान लीजिए 1,000, 20,000 एंड 30,000 आपने ऐड कर दिया. इंस्टेड ऑफ 10 आप क्या ले लिया? 1,000. सो टोटल इज 51,000 जो कि आपने पोस्ट किया होगा कहां पे? परचेज अकाउंट में 30 अप्रैल को टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 51,000, जो कि एक गलत चीज है. आपने मई महीने का भी परचेजेस पोस्ट कर दिया. नाउ इन जून 10th जून लेट अस से आपने ये फाइंड कर लिया कि नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम इन परचेज ऑफ अप्रैल मंथ. आपने परचेज बुक देखा एंड यू रियलाइज दैट यू हैव मेड वन मिस्टेक. आपका एक गलती हो चुका है. कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सो हियर द रेक्टिफिकेशन रूल सेज दैट इफ you have made any one-sided error and you are rectifying during the accounting year, so you go to respective ledgers and you rectify. तो हम क्या करेंगे? परचेज मैंने डेबिट किया, हाँ. कम या ज्यादा? कम किया. कितना? 9,000 रुपीज से. सो आई डेबिट परचेज 9,000 रुपीज. डेट कौन सा लिखेंगे? ऑब्वियसली जिस दिन पे आप रेक्टिफाई कर रहे हो, 10th जून. बट रिमेंबर द रूल ऑफ पोस्टिंग. कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अकाउंट में आना चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का रेफरेंस जो आप क्रिएट कर रहे हो, हम यहां पे लिखते हैं टू एरर ऑफ अंडरकास्टिंग परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018. क्या ऐसा कोई अकाउंट होता है? नहीं होता है. अगर आप इसको पोस्ट करोगे ऐसा अकाउंट बना के, तो वापस आप एक और एरर करोगे. सो this is also one of the exception to the rule of posting. So guys, we have discussed few exception to the rule of posting. क्या क्या हमने डिस्कस किया था, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. हमने डिस्कस किया है ओपनिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज. जो आप बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड लिखते हैं, कैरी डाउनवर्ड लिखते हैं, वो होगा एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री का हम रेफरेंस नहीं दे पाते हैं. सेकेंड एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ पोस्टिंग, वो हमने डिस्कस किया सब्सिडियरी बुक या फिर स्पेशल जर्नल्स, जिसमें कि आप क्या करते हैं. अब हमने एग्जांपल लिया परचेज बुक का, जहां पे आप पोस्टिंग करेंगे परचेज बुक का पीरियडिक टोटल टू परचेज अकाउंट, जहां पे हम लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, बट वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं जाता है. और तीसरा हमने जो एक्सेप्शन डिस्कस किया रूल ऑफ पोस्टिंग का, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर इन द सिचुएशन वेयर ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड. होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो एंड लर्न समथिंग. थैंक यू सो मच.